Hello students, today we will do class 10 chapter 6 similarity. ये चैप्टर मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे से करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो सिमिलैरिटी क्या होता है? 9th क्लास में सबने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है? What is congruency and what is similarity? Two objects are said to be congruent if they are exactly same in shape and size. And two objects are said to be similar if the objects are same in shape. They need not to be same in size. They may be different in size but should be same in shape. Then the objects are said to be similar. For example, two circles. Two circles congruent कब होते हैं? If they are exactly same in shape and size. Means दोनों सर्कल साइज में भी शेप सेम होने चाहिए. शेप तो सारे सर्कल्स की सेम ही होती है. They are round. So two circles are said to be congruent if they have same radius. और similar कब होते हैं circles? Any two circles are similar because they are same in shape. They may be of different radius, they may be of different shape, size. So two circles are said to be similar if they are, any two circles are similar. Similarly, any two squares are similar because सारे squares का जो shape है वो same होता है, size may be different. But two squares are said to be congruent if they are of same shape and size. Shape तो सबका same ही होता है square का, size भी same होना चाहिए. That means उनका side same होना चाहिए. So in this lecture we will do similarity. So let's start with this. First we will do BPT theorem, basic proportionality theorem, which is very important. तो एग्जाम्स में क्या आता है? स्टेट एंड प्रूव. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो इसमें तुमने स्टेटमेंट भी खुद लिखना है और इसका प्रूफ भी खुद लिखना है. So, सबसे पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. So what is basic proportionality theorem? First we will write statement. So what is the statement? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ये statement सबने learn करना है और फिर लिखना है. So अब इस थ्योरम को हमने प्रूव करना है. So first we will write given. So given क्या है? In a triangle ABC, एक triangle है ABC, in which there are two points, two distinct points on any two sides of the triangle. Let these points be D and E. So what is the statement? A line is drawn parallel to one side of a triangle. अगर हम इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इन दो साइड्स को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है, तो प्रूफ क्या करना है? दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मतलब ये जो D और E पॉइंट्स हैं इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. सो व्हाट इज गिवन? Given is a triangle ABC in which DE is parallel to BC. तो ये हमें गिवन है DE लाइन BC के पैरेलल है. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव other two sides are divided in the same ratio. That means we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC.
तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? वी विल ड्रॉ perpendicular EL perpendicular to AD. We will draw EL perpendicular to AD. अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि लाइन AD, लाइन DB, लाइन AB, ये एक ही लाइन है। AD लाइन, DB लाइन एंड AB एक ही लाइन के पार्ट्स हैं ये। तो अगर EL AD के परपेंडिकुलर है तो वो DB के भी परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज दोनों पार्ट्स AB के ही पार्ट्स हैं। Similarly, we will draw DM perpendicular to AE. तो अगर DM AE के परपेंडिकुलर है तो वो EC के भी परपेंडिकुलर होगा। So we will write in construction, draw EL perpendicular to AD and DM perpendicular to AE. Also in construction we will join BE and DC. Join DC and BE. तो ये तो हो गया गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ इसका प्रूफ। सो सबसे पहले हमने लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमने क्या लेना है? AD अपॉन DB प्रूव करना है। AD अपॉन DB मतलब AD साइड वाला ट्रायंगल लेंगे ADE, DB साइड वाला ट्रायंगल लेंगे DBE। इन दोनों के एरियाज का हमने रेशो निकाल लेना है। सबसे पहले हिंट लेना ये चीज बनानी है AD अपॉन DB। AD साइड आती है ट्रायंगल ADE में, DB साइड आती है ट्रायंगल DBE में, तो दोनों के एरियाज का रेशो। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो हाफ इस ट्रायंगल का बेस है AD और इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD के ऊपर EL परपेंडिकुलर। इन द सेम वे ट्रायंगल DBE का एरिया, DBE ट्रायंगल में बेस क्या है? DB एंड इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने पहले बताया था जो EM परपेंडिकुलर है वो AD के भी परपेंडिकुलर है, दैट मींस वो DB के भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज AD DB दोनों AB लाइन के ही पार्ट्स हैं। तो AB लाइन पर कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। सो इसका परपेंडिकुलर भी होगा EL। सो यहां पर ये कट, सिमिलरली ये कट। सो व्हाट वी गेट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE upon area of triangle DBE is equal to AD upon DB. We take this as equation 1. In the same way, दूसरी साइड बनानी है। ये साइड हमने बना ली, अब ये बनाना है AE upon AC। तो AE साइड आती है इन द सेम ट्रायंगल ADE, EC साइड आती है इन ट्रायंगल DEC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो वही सेम फॉर्मूला, this is equal to half. Now in this triangle we will take base AE and perpendicular DM upon, इस ट्रायंगल में बेस लेंगे EC एंड परपेंडिकुलर विल बी सेम DM। DM परपेंडिकुलर AE के है तो उसको एक्सटेंड किया EC के भी होगा। सो इसका परपेंडिकुलर इज DM। ये कट, ये कट। So we get area of triangle ADE upon area of triangle DEC is equal to AE upon EC. We take this as equation 2. अब हमने क्या करना है? इनको इक्वल प्रूव करना है।
फॉर दैट हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इन दोनों में देखो न्यूमरेटर तो सेम है, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स हमने अब क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये नीचे वाला, दिस इज DBE, इस ट्रायंगल का एरिया एंड इस ट्रायंगल का एरिया ये दोनों सेम है। DBE एंड DCE इन दोनों का एरिया सेम है, क्यों सेम है वो बताना है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to area of triangle DEC. इसका रीजन because both triangles are on same base, ये same base पर बने हैं, that is DE base, and are between same parallel lines DE एंड BC, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, सो उनका एरिया सेम होता है। तो हमने ये बता दिया इसमें इन दोनों का एरिया सेम है, देयरफॉर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, क्योंकि ये दोनों तो ऊपर सेम ही है, हमने डिनोमिनेटर्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया, सो उनके एरिया भी इक्वल हो गए, तो पूरा रेशियो इक्वल हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस। Therefore from 1 and 2 their left hand side are equal, so their right hand side will also be equal. So AD upon DB will be equal to AE upon EC, यही हमने प्रूव करना है, hence proved। अब इसी के दो फर्दर रिजल्ट्स हैं जो हमने फिर प्रूव करने हैं। हमने अभी प्रूव किया है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो इसके फर्दर रिजल्ट्स क्या हैं? सो इसका फर्दर रिजल्ट है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। पहले हमने AD अपॉन DB लिया था, अब कर रहे हैं AD अपॉन फुल साइड AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो इस रिजल्ट से ये कैसे बनाएंगे? सो वी हैव AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. This we have proved here. Now ये बनाना है, AB बनाना है किसका? DB के प्लेस पर AB बनाना है। तो पहले हम करेंगे रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो जिस साइड को हमने एलिमिनेट करना है, DB को एलिमिनेट करके AB लाना है, तो उसको हम पहले ऊपर ले जाएंगे, जिसको एलिमिनेट करना है उसको ऊपर ले जाएंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। Now adding 1 on both sides. So this becomes we have added 1 on both sides. So we get AD LCM DB plus AD, and this side AE LCM EC plus AE. So DB plus AD. What is DB plus AD? That is AB upon AD is equal to EC plus AE. This is AC. So DB एलिमिनेट करके हमने AB ला दिया, EC एलिमिनेट करके AE ला दिया। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें AB नीचे है, so again taking reciprocals, so ये हमने पहला रिजल्ट प्रूव कर दिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, इसमें हमने AD को एलिमिनेट करना है, DB को लाना है, AD एलिमिनेट करना है, DB रखना है, तो हमने AD को ऊपर DB को नीचे रख के ऐसे 1 ऐड कर देना है, उससे वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नाउ वी विल डू इट्स फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल सर्कल्स आर,
ऑल सर्कल्स में रेडियस मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स दे कैन बी ऑफ एनी रेडियस. सो ये सर्कल्स, ऑल सर्कल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. तो कॉन्ग्रुएंसी कब होती है? जब उनका रेडियस सेम हो. तो रेडियस तो मेंशन नहीं किया, सो हियर इट विल बी सिमिलर. ऑल मीन्स दे कैन बी ऑफ एनी साइज, बट शेप तो सबका सेम होगा, राउंड होगा. सो ऑल सर्कल्स विल बी सिमिलर. सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल स्क्वेयर्स आर. तो स्क्वेयर्स का भी साइड मेंशन नहीं है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, बट शेप सबका सेम होता है. सो दीज विल बी सिमिलर. ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो जो ट्रायंगल्स सेम शेप के होंगे वो सिमिलर होंगे. क्या आइसोस्केल्स ट्रायंगल सारे सेम शेप के होते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल? आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स का बेस अलग अलग हो सकता है, सो उनके शेप सेम नहीं होंगे. ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, क्योंकि उसमें सारे का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, तो सब सेम शेप के होंगे. नाउ टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स. दो पॉलीगन्स हैं जिनके नंबर ऑफ साइड सेम है, दे विल बी सिमिलर इफ. So two polygons are similar if there is, first condition is their corresponding angles should be equal. उनके corresponding angles equal होने चाहिए and their corresponding side should be in same ratio. Same ratio means they should be proportional. So similarity का मेन रूल ये है, कोई भी दो पॉलीगन जो सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं, they will be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides equal नहीं होने चाहिए. इक्वल हो गए तो वो congruent हो जाएंगे. सिमिलर होने के लिए all the corresponding sides should be proportional. Now question number 2. Now question number 2 is give two different examples of a pair of सिमिलर फिगर्स. तो सिमिलर फिगर्स के हमें दो एग्जाम्पल देने हैं. तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जो सेम शेप के हो, और वी कैन से दैट टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. तो सिमिलर फिगर का एक एग्जाम्पल तो दे दो सर्कल्स, क्योंकि सर्कल सारे राउंड होते हैं, उनका सेम शेप हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल दे दो स्क्वेयर्स. इनका भी सेम शेप होता है, but size can be different. Second part, non-similar figure के examples. All quadrilaterals, क्योंकि quadrilaterals का shape different हो सकता है. And second दे दो isosceles triangles. Isosceles triangles का भी जो shape है वो different हो सकता है. Now question number 3, हमें इसमें दो फिगर दे रखे हैं. एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है ये, एंड सेकंड इज अ स्क्वायर. इसका ईच साइड 3 सेंटीमीटर है एंड इसका ईच साइड 1.5 है. तो क्या ये सिमिलर है, ये बताना है. सो हमने क्या पढ़ा था? अगर दो पॉलीगन जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, वो सिमिलर कब होते हैं? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, ना ही ये एंगल इसके इक्वल है. सो दीज टू पॉलीगन्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. साइड्स का रेशियो सेम है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस. सेकेंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, साइड्स आर इन same ratio, that means proportional, but their corresponding angles are not equal. First condition follow नहीं हो रही, so these are not similar. Now moving on to exercise 6.2. Now question number 1 is, we are given triangle ABC in which DE is parallel to BC. We have to find EC. बाकी तीन साइड्स की लेंथ गिवन है. देखो AD is 1.5 सेंटीमीटर, DE is 3 सेंटीमीटर, AE is 1 सेंटीमीटर. We have to find EC. तो जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है उसमें हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन हो, DE is parallel to BC, तो हमने BPT थ्योरम यूज करनी है. So what is BPT थ्योरम? Because DE is parallel to BC. So using basic proportionality theorem, that means BPT. What is BPT? AD upon DB is equal to
AE अपॉन EC। सो बस वैल्यूज पुट करना है और EC निकाल देना है। AD is 1.5, DB is 3, AE is 1 and EC we have to find out. So इसको सॉल्व कर दो, EC निकालना है। So this is डेसिमल हटाया अपॉन 10 is equal to 1 अपॉन EC, कैंसल किया। So क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, we get EC is equal to 2 centimeter. I think this is clear to everyone. In the same way, we can do second part. In this also, triangle ABC in which given is DE is parallel to BC. AD की length find करनी है, BD की length 7.2, AE is 1.8 and EC is 5.4 centimeter. So again using BPT, because we are given DE is parallel to BC, using BPT, basic proportionality theorem. AD upon DB is equal to AE upon EC. इसमें वैल्यूज डालो, AD निकालना है, ये 7.2 है, this is 1.8, this is 5.4. So डेसिमल्स रिमूव कर लो पहले, 7.2 को ऊपर ले गए, चाहे तो डायरेक्ट कटिंग कर लो, चाहे डेसिमल रिमूव कर लो, जैसे सबको कन्वीनियंट लगता है। इसका डेसिमल हटाया 10, 1.8 का हटाया 10, फिर 5.4 का डेसिमल हटाया, ऊपर लगेगा 10। सो 10 से 10 कैंसल, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ये 3 के टेबल से कैंसल। सो आगे कैंसल करने की बजाय 10 में रखो और 10 से डिवीजन की 2.4 सेंटीमीटर। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें पैरेलल लाइंस गिवन होंगी, हमने बीपीटी थ्योरम यूज करनी है। Now question number 2 is, we are given triangle PQR in which first part PE is 3.9 centimeter, EQ is 3 centimeter, PF is 3.6 centimeter, FR is 2.4 centimeter. तो करना क्या है, चारों साइड्स की लेंथ दे दी, तो निकालना क्या है? निकालने के लिए बताया है स्टेट वेदर EF is parallel to QR. हमें ये बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं। तो हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी से करना है इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम साइड्स का रेशियो निकाल लेते हैं, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। चेक करेंगे अगर दोनों रेशियो इक्वल है, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। सो फर्स्ट वी फाइंड PE अपॉन EQ। PE is 3.9, EQ is 3. So when we cancel, we get 1.3 centimeter. Centimeter नहीं लगाना, ratio है 1.3. Similarly, PF upon FR 3.6 upon 2.4. 12 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। पहले तो डेसिमल रिमूव कर दो। देखो जब डेसिमल प्लेस सेम होते हैं, डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम होते हैं, तो डेसिमल ऐसे ही रिमूव हो जाता है, हमें टेंस लाने की जरूरत नहीं होती है। 36 अपॉन 24, इसको हमने 12 के टेबल से कैंसिल किया, दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 1.5। देयरफॉर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये रेशो सेम नहीं है। जब बीपीटिक थ्योरम का रेशो ही सेम नहीं आता तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस आर नॉट पैरेलल। EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर रेशो इक्वल होगा, बीपीटी थ्योरम की कंडीशन लागू होगी, तभी ये लाइंस पैरेलल। In the same way, we can do second part and third part. Second part is PE is 4, PE is 4, Q is 4.5, PF is 8 and RF is 9. तो same way में इनका रेशो निकाल लो।
In second part, PE is 4, Q is 4.5, decimal remove किया, 5 8 जा 5 9, this is 8 upon 9. PF upon FR, this is 8 upon 9. देखो दोनों रेशो सेम आ गए, so therefore PE upon EQ is equal to PF upon FR. So we can say that by converse of BPT, basic proportionality theorem, उसका रेशो इक्वल है, so lines are parallel. कन्वर्स मीन्स उल्टा, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो इक्वल होता है. कन्वर्स क्या कहता है कि अगर रेशो इक्वल है तो लाइंस भी पैरेलल होंगी. In the same way we can do third part. In third part we are given the whole side PQ, whole side PR, PE and PF. तो कौन सा रेशो निकालना है अब हमने इसमें, या तो ऐसे करते हैं, पहले EQ की लेंथ निकाल लो. वी आर गिवन PQ 1.28 सेंटीमीटर, वी आर गिवन PR is 2.56 सेंटीमीटर, PE गिवन है 0.18 सेंटीमीटर. तो PQ में से PE माइनस करके क्या आ जाएगा, EQ की लेंथ आ जाएगी. पहले EQ निकाल लो इसमें से. EQ is equal to PQ minus PE. 1.28 minus 0.18. So we get 1.10. In the same way here, PR is 2.56, PF is 0.36, PR given है, PF given है, तो ये FR निकाल लो. FR is 2.56 minus 0.36. So this is 2.20. तो अब दोनों साइड रेशो निकाल लो. PE upon EQ, PE is 0.18 and this is 1.10. 2 decimal place and decimal remove कर दो. This is 2 9s are 2 5s are 2 5s are 9 upon 55. And this side PF upon FR, that is 0.36 upon 2.20. Here also decimal digits are same, so 36 upon 220. So किससे कैंसल करेंगे, 4 के टेबल से. So this ratio also comes out to be 9 upon 55 because both ratios are equal, therefore lines are parallel. So this was second question. Now question number 3 is, we are given this figure. In this figure, LM is parallel to CB. ये LM line CB line के parallel है. And LM is parallel to CD. Proof क्या करना है, AM upon MB is equal to AM upon AB. हाफ लाइन अपॉन पूरी लाइन इज इक्वल टू AM अपॉन पूरी लाइन AD. ये हमने प्रूफ करना है. सो इसका प्रूफ, एज आई टोल्ड अर्लियर, जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल गिवन हो तो हमने वहां पर BPT लगा देनी है. सो फर्स्ट गिवन इज LM इज पैरेलल टू CB. ये कौन से ट्रायंगल में आती है दोनों लाइंस, इन ट्रायंगल ABC. सो स्टार्टिंग विद दिस, इन ट्रायंगल ABC we are given LM is parallel to CB. यहां पर लिखो गिवन, हर लाइन का रीजन देना है. Therefore by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होता है वो, जब लाइन एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है तो साइड्स जो हैं, अदर टू साइड्स आर इन सेम रेशियो. दैट मीन्स AM upon AM upon MB is equal to AL upon LC. Take this ratio as equation 1. ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल में BPT लगा दी है. In the same way, अब हमें गिवन है LN is parallel to CD. So ये दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आती हैं,
ACD. सो इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा देंगे इन ट्रायंगल ACD. We are given that LN is parallel to CD. Given. Therefore, by basic proportionality theorem, we can write AN upon ND is equal to AL upon LC. This is equation 2. AN upon ND is equal to AL upon LC. So from 1 and 2, ये रेशो इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, सो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी. AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND. तो अब हम चेक करेंगे कि क्या यही प्रूव करना है. AM अपॉन AB है, MB की जगह पर पूरी लाइन AB है. तो ये हमने बीपीटी के एक्स्ट्रा रिजल्ट्स में किया था कि एक लाइन की जगह पर अगर पूरी लाइन आ रही हो तो वो कैसे लाते हैं. तो हमें MB को हटाकर AB लाना है. तो जिसको रिमूव करना है उसको ऊपर रखो, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स. MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN. नाउ एडिंग 1 टू ईच साइड, we get MB upon AM plus 1 is equal to ND upon AN plus 1. Now taking LCM, this is equal to AN LCM ND plus AN. So this becomes MB plus AN. This is AB. AB upon AN is equal to ND plus AN. तो इन दोनों साइड्स को हमने ऐड किया तो क्या बन जाता है AD. तो जो हमने प्रूव करना है उसमें AB और AD नीचे है. सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. तो जो प्रूव करना है हमारे पास वो रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूव्ड. तो सारे क्वेश्चन ऐसे सिंपल वे में है. कहीं पर भी हमें 2 लाइंस पैरेलल गिवन होंगी ट्रायंगल में, हमने बीपीटी लगा देनी और रिजल्ट्स प्रूव कर देने. सो दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, वी आर गिवन दैट DE इज पैरेलल टू AC. DE लाइन AC के पैरेलल है, DF लाइन AE के पैरेलल है. We have to prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. ये हमने प्रूव करना है. So let's start with this. So सबसे पहले ये देखना है क्या गिवन है. We are given this DE parallel to AC. तो ये दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आती हैं? DE and AC. ABC ट्रायंगल में. So in triangle ABC, we are given that DE is parallel to AC. This is given. So मैंने क्या बताया था, जब भी लाइंस पैरेलल गिवन हो वहां पर हम BPT यूज कर लेते हैं. So using BPT, what will be BPT? DE is parallel to AC. तो इन्हीं को यूज करना है. AD upon DB. नहीं, B से लगेगा BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC. BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC. ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां से शुरू होगा. BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC. इसको ले लो इक्वेशन 1. नाउ अनदर गिवन DF इज पैरेलल टू AE. तो ये दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आ रही है? BAE. इसमें बीपीटी लगा देंगे. इन ट्रायंगल BAE, we are given that DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. So by BPT, we will write BD upon DA is equal to BF
अपॉन एफ ई, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल टू इन दोनों साइड्स का रेशियो. सो टेक दिस इक्वेशन एज 2. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 बी डी अपॉन डी ए दोनों में है, सो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी. फ्रॉम 1 एंड 2 बीई अपॉन ई सी, दिस विल बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई. तो देखो यही हमने प्रूव करना है. बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी. Hence proved. Now moving on to next question. Now question number 5 is, in this triangle we are given that DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR. This is OR. We have to prove that EF is parallel to QR. तो सिंपल लॉजिक है, जोन सी भी लाइंस पैरेलल गिवन है उस ट्रायंगल में बीपीटी लगा दो. फर्स्ट ए वाला गिवन उठाओ, डीई पैरेलल टू ओ क्यू. तो ये दोनों साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रही है? पी ओ क्यू. इन ट्रायंगल पी ओ क्यू वी आर गिवन डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू. सो बाय बीपीटी क्या होगा? बीपीटी से PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO. इसको इक्वेशन 1 ले लो. नाउ दूसरा गिवन DF पैरेलल टू OR. तो इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा दो. इन ट्रायंगल POR DF इज पैरेलल टू OR. Therefore by BPT PD upon DO is equal to PF upon FR. Take this equation as equation 2. Now from 1 and 2 what do we get? ये रेशियो सेम है PD upon DO, so ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. PE upon EQ is equal to PF upon FR. तो क्या रिजल्ट आता है? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. बट प्रूव क्या करना है? EF पैरेलल टू QR. तो अगर ये दोनों साइड्स का रेशियो ऐसे सेम है तो क्या EF QR के पैरेलल होगा? होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT. तो इसको लिखना कैसे है? नाउ इन ट्रायंगल PQR पूरे ट्रायंगल में EF ये रेशियो इक्वल है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. यहां पर लिखो प्रूव्ड अबव. Therefore by converse of BPT अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है देन साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. Therefore EF is parallel to QR. Hence proved. यही हमने प्रूव करना था. Now moving on to next question. Now in question number 6 we are given this figure in which what is given? Given is AB is parallel to PQ. AC is parallel to PR. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है. प्रूव करना है BC is parallel to QR. So प्रूफ इसका सबसे पहले फर्स्ट गिवन लेंगे AB इज पैरेलल टू PQ. ये दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आती हैं? ट्रायंगल POQ. We are given AB is parallel to PQ. Therefore by BPT ratio will be same. OA upon AP is equal to OB upon BQ. Take this as equation 1. Now another given AC parallel to PR. So in triangle OPR, AC is parallel to PR. So इसमें भी वही चीज by BPT ratio OA upon AP is equal to OC upon CR.
So take this as equation 2. Now from 1 and 2 we get ये दोनों इक्वल हो गए. So OB upon BQ this is equal to OC upon CR. So ये आ गया. अब हमने क्या प्रूफ करना है? BC अपॉन QR और हमारे पास रिजल्ट आता है OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. तो आ गया कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम. रेशियो इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होंगी. सो लिखना है इन ट्रायंगल QOR we have OB upon BQ is equal to OC upon CR. This is proved above. रीजन देंगे therefore by converse of BPT BC is parallel to QR. Hence proved. So this was question number 6. Now question number 7 is using theorem 6.1 means BPT. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle. Line drawn through the midpoint. Given is D is midpoint. इससे हम जो line draw करते हैं parallel to BC. It bisects the third side. That means we have to prove that E is the midpoint of AC. So what is given? Given is D is midpoint of AB and DE is parallel to BC. ये हमें गिवन है. लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड bisects the third side also. That means we have to prove AE is equal to EC. So इसको करते हैं. तो स्टार्टिंग वैसे ही पैरेलल के लॉजिक से इन ट्रायंगल ABC we are given DE is parallel to BC. Therefore by BPT क्या होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमारे पास रिजल्ट आता है BPT से. नाउ अनदर गिवन यूज करते हैं. D इज मिड पॉइंट ऑफ AB बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ये हमें गिवन है. Therefore AD इज इक्वल टू DB. इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपॉन DB. DB को AD के नीचे ले आए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. सो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे. Therefore from equation 1 AD upon DB is 1. 1 is equal to AE upon EC. On cross multiplying we get EC is equal to AE. तो यही हमने प्रूफ करना है that E is also midpoint of AC. Therefore DE bisects AC also. Hence proved. So simple tha question. Now question number 8 is prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. मतलब हमने इन दोनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं इनसे जो लाइन ड्रॉ की है ये थर्ड साइड के पैरेलल है. दैट मीन्स व्हाट आर वी गिवन? गिवन इज D and E are midpoints of AB and AC. That means we are given that AD is equal to DB and AE is equal to AC. ये हमें दोनों मिड पॉइंट्स गिवन है. तो प्रूव क्या करना है? दैट ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती लाइन इज पैरेलल टू BC. तो क्या लॉजिक है? जब हमें दो लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं तब हम BPT यूज करते हैं और जब हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो हम कन्वर्स ऑफ BPT लगाते हैं. कन्वर्स ऑफ BPT मतलब हमें ये रेशियो को इक्वल प्रूव करना है. सो हम ये रेशियो निकालते हैं. प्रूफ बिकॉज D इज मिड पॉइंट of AB. Therefore, AD is equal to DB. So this can be written as AD upon DB is equal to 1. Take this as equation 1. Similarly,
E is also midpoint of AC. Therefore, AE is equal to EC. This implies AE upon EC is equal to 1. So from 1 and 2, दोनों ही 1 के इक्वल है, सो दोनों रेशियोज भी इक्वल होंगे. ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो अब हमने क्या किया, ये रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया. सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, we can say that DE is parallel to BC. यही हमने प्रूव करना. Next question is question number 9. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. सो क्वेश्चन इज अबाउट ट्रेपेजियम. तो एक ट्रेपेजियम बना लेंगे जिसमें दो साइड्स पैरेलल है. ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ए बी सी डी. इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. सो डायगोनल्स ज्वाइन कर लो, ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं. सो प्रूव करना है ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू सी ओ. AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. ये प्रूव करना है. तो कभी भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आता है, साइड्स का रेशियो प्रूव करना है, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू AB या CD. सो गिवन इज ABC इज अ ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to DC and diagonals intersect at O point. To prove is AO upon BO is equal to CO upon DO. For this, we draw construction. Join OE, draw OE parallel to AB or CD because AB और CD both are parallel. तो OE अगर AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगा. प्रूफ. तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है OE is parallel to AB, तो इसको यूज करेंगे कौन से ट्रायंगल में आता है, ABD में. सो इन ट्रायंगल DAB OE इज पैरेलल टू AB. ये हमने फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लिया है. सो यूजिंग BPT we can write DE upon EA is equal to DO upon OB. So take this as equation 1. Now another triangle. OE क्योंकि AB के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, so OE is also parallel to DC because AB is parallel to DC and OE is parallel to AB. Therefore OE is also parallel to DC. तो इसको उठाएंगे कौन से ट्रायंगल में लगेगा, OE parallel to DC. So in triangle ACD, OE is parallel to DC. Therefore, by BPT, AE upon AD is equal to AO upon OC. अब इन दोनों को हम कंपेयर करें. इसमें DE अपॉन EA है, इसमें AE अपॉन ED है, उल्टा है. तो क्या करते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स. ED को वी कैन राइट DE अपॉन AE इज इक्वल टू CO ऊपर अपॉन AO. सो वी विल टेक दिस एज इक्वेशन 2.
नाउ वी कैन कंपेयर 1 and 2 क्योंकि अब ये दोनों सेम हो गए. सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इक्वल हो गई, सो राइट इज ऑल्सो इक्वल. OB we can write BO, CO upon AO. Now अब देखो टू प्रूफ क्या है, AO upon BO. That means AO इधर होना चाहिए और DO नीचे होना चाहिए. तो ये हम कर ही सकते हैं बाय ऑल्टरनेंडो रूल. AO ऊपर चला गया, दिस इज इक्वल टू CO upon DO. ये ऊपर ले गए और DO को नीचे ले आए. Hence proved. यही हमने प्रूफ करना है. Now question number 10 is the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. तो एक ट्रेपेजियम टाइप क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे क्योंकि इसको हमने ट्रेपेजियम प्रूव करना है. Diagonals intersect at O. Given is AO upon BO is equal to CO upon DO. तो we have to prove that. So इसमें हमने प्रूव करना है ABCD is a trapezium. That means हमें दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है. For that we draw construction. Construction is OE parallel to AB. So proof. So construction से start करेंगे in triangle DAB. We are given OE parallel to AB. So ये दोनों lines parallel है तो इसमें हम BPT लगा देते हैं. By BPT basic proportionality theorem, sides का ratio equal होगा DE upon EA is equal to DO upon OB. So आप गिवन को यूज करेंगे. फ्रॉम गिवन AO upon BO is equal to CO upon DO. तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए यहां पर हमारे पास DO upon OB ये रिजल्ट होना चाहिए. सो DO को ऊपर ले आओ, AO को नीचे ले जाओ, so that we can compare these two equations. DO ऊपर गया, AO नीचे आया. So we take this equation as 1 and this as equation 2. Now we can compare these two. From 1 and 2, we get DE upon EA is equal to CO upon AO. तो कहाँ पर आ रहा है रिजल्ट ये, DE upon EA is equal to CO upon AO. So पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो. By taking reciprocals, we get AE, we can write AE upon ED is equal to AO upon CO. अब देखो रिजल्ट, AE upon ED is equal to AO upon OC. So इस ट्रायंगल में by converse of BPT theorem, EO is parallel to DC. Therefore, by converse of BPT, EO is parallel to DC. और गिवन क्या था हमारे पास, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या लिया था, OE is parallel to AB. We have proved that OE is parallel to DC. Also, OE is parallel to AB. So these two results, we get AB is parallel to DC. Therefore, we can say that ABCD is a trapezium. ट्रेपेजियम प्रूव करना था, मीन्स हमें इन दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करना था. सो आई थिंक दिस चैप्टर इज दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू एवरीवन. सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.